Hello students of 7th standard. So today we are starting with a new subject, that is history, and starting with a new chapter number 1, that is sources of history. So till last year in 6th standard you have studied a lot about the different kings. Okay, we have studied a history that is related to ancient India. We have studied about many different kings like Emperor Ashoka, Chola dynasty, Yadava dynasty, etc. Okay, but this year we are going to study about medieval period. We are going to study the history of India during the medieval period. Okay, so अभी medieval period को किसको कहते हैं? The period beginning from the 9th century and ending in the 18th century is called the medieval period. 9th century से 18th century तक जो period चलता है उसको कहते हैं medieval period. Okay, in Indian history. तो हम लोग ये पीरियड के बीच में वॉट एवर इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट दैट हैज़ टेकन प्लेस इन इंडिया हम लोग ये पढ़ने वाले. ओके, सो स्टार्टिंग विद चैप्टर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. तो सोर्सेज का मीनिंग क्या होता है? ओके, वी नो हिस्ट्री. हिस्ट्री मीन्स पास्ट इवेंट. तो सोर्सेज का मीनिंग क्या होता है? सोर्सेज को अगर हम लोग इंग्लिश में पढ़ने जाए तो इंग्लिश में सोर्सेज का मीनिंग होता है स्टार्टिंग पॉइंट और द ओरिजिन पॉइंट. यहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुई है. बट कंसिडरिंग टू दिस चैप्टर, रिलेटेड टू दिस चैप्टर, सोर्सेस का मीनिंग होता है व्हाट आर द डिफरेंट रिसोर्सेस, व्हाट आर द डिफरेंट मीडियम दैट इज अवेलेबल टू अस फॉर द पर्पज ऑफ स्टडिंग द हिस्ट्री. उसको कहते हैं सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. ओके, सो while studying history, history is a quite important subject to learn. Okay, so whenever we study a history gives us a chronological idea of the past event. Now what is chronology? Chronology क्या होता है? Chronology means a chart which gives a description of the event that has taken place in the time order. ठीक है ना, टाइम वाइज, ईयर वाइज कौन कौन से इवेंट कब हुए हिस्ट्री में वो हमें बताता है. सो दिस इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी. सो सिस्टमेटिकली क्रोनोलॉजी में हमें पता चलता है हिस्ट्री में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स कब हुए थे. ओके, सो वेन एवर वी स्टडी हिस्ट्री देर आर different factors that we should consider. There are mainly four factors that plays a quite important role in studying the history. Okay, first is individual. मतलब एक individual human का हिस्ट्री में क्या रोल होता है प्ले करने के लिए, वो हम लोग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है. सेकेंड इज सोसाइटी. मीन्स व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर एंड प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन हिस्ट्री, वो पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी होता है. थर्ड इज प्लेस. किसके बारे में हम लोग, किस जगह के बारे में हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन लर्निंग हिस्ट्री. एंड फोर्थ इज टाइम. ऑफकोर्स किस टाइम पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं, वो एक क्वाइट इंपॉर्टेंट रोल होता है प्ले करने के लिए. ओके, सो फॉर एग्जांपल दिस ईयर वी आर स्टडिंग अबाउट द मेडिवल हिस्ट्री. Till last year we studied about the ancient history. So time is quite important factor in learning history. Okay, so whenever we are studying history it is quite important कि जो भी sources से हम लोग history पढ़े वो authentic होना चाहिए, मतलब सच्चा होना चाहिए. ऐसा कोई भी fake history हमें नहीं पढ़ना चाहिए. Okay, so learning this history from the authentic places or from with the valid proof, उसको हम लोग कहते हैं sources of history. Means when we are learning history with the valid proof or from the evidence of with authentic sources, उसको कहते हैं हम लोग sources of history. Okay, so sources of history is classified into many different categories and broadly it is classified into three categories. First is material sources, सेकेंड इज रिटन सोर्सेज एंड थर्ड इज ओरल सोर्सेज. और क्या है वो हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ने ही वाले. ओके, उसके पहले हमें कुछ छोटी सी नॉलेज दी गई है. इट इज सेइंग दैट whenever we study history, okay, or whenever we consider many different factors while studying the history, it is necessary to first verify that whatever history we are studying is authentic and valid. ठीक है ना, हम लोग ऐसी ही कोई भी झूठी अफवाह हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे. जो भी हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी हिस्ट्री हम लोग स्टडी कर रहे हैं, वो सच्चा हिस्ट्री होना चाहिए. कोई झूठ के ऊपर टिका हुआ हिस्ट्री नहीं होना चाहिए. देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू critically examine the history, critically examine the data that we are studying. देन ओनली वी हैव टू स्टडी इट और टेक इट इनटू कंसिडरेशन. ऐसे ही हम लोग पहले ही झूठा कोई भी हिस्ट्री पढ़ नहीं सकते. पहले हमें उसको एनालाइज करना रहता है. एनालाइज करने के बाद ही हम लोग को हिस्ट्री पढ़नी चाहिए. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, पहला सोर्स है अबाउट मटेरियल सोर्सेज. नाउ व्हाट इज मटेरियल सोर्सेज? मटेरियल सोर्सेज मतलब वो सोर्स जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मटेरियल सोर्स. सो देर आर डिफरेंट मटेरियल सोर्स. देखो इधर एक चार्ट दिया हुआ है. फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स के जो भी हिस्ट्री, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ताजमहल की बात करें, इट हैज़ अ इम्पॉर्टेंट रोल इन हिस्ट्री. ठीक है ना, हम लोग ताजमहल को देख सकते, टच कर सकते, फील कर सकते. ओके, केव स्कल्पचर्स.
केव के अंदर जो स्कल्पचर्स बने रहते, पत्थर को तोड़ तोड़ के जो भी स्कल्पचर्स बने रहते, उसको हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, एंड उससे हिस्ट्री तो कुछ ना तो कुछ जुड़ी हुई होती ही है. कॉइन्स, of course, coins of different era of medieval period plays an important role in studying the history. ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स के कॉइन होते थे उस टाइम पे. सो कॉइन को हम लोग टच कर सकते, फील कर. सो मटेरियल सोर्सेस बहुत सारे होते हैं. सो फोर्ट्स, ठीक है ना, फोर्ट्स मतलब किले. सो फोर्ट प्लेज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट रोल इन मटेरियल सोर्सेस. ठीक है ना, बहुत टाइप के फोर्ट्स होते थे. ओके, हिल फोर्ट जो पहाड़ के ऊपर फोर्ट्स रहते हैं उसको हिल फोर्ट कहते हैं. सी फोर्ट्स जो समंदर पे किले रहते हैं उसे हम लोग सी फोर्ट्स कहते हैं. ओके, एंड मॉन्यूमेंट्स लाइक समाधिस, ग्रेव. समाधि मतलब जिन्हें कोई बड़े बड़े राजाओं को जहाँ ग्रेव्स मतलब गाड़े जाते हैं, ओके, उन्हें हम लोग कहते हैं समाधिस. पैलेसेस, राजा और रानियों के लिए पैलेसेस, किले रहते हैं, महल, उन्हें पैलेसेस कहते हैं. मिनिस्ट्रियल मेंशन, जो राजाओं के मंत्री लोग जहाँ पे रहते हैं उन्हें कहते हैं मिनिस्ट्रियल मेंशंस. क्वीन क्वार्टर्स, रानी जिस कमरे में रहती है उसे कहते हैं क्वीन क्वार्टर्स. ओके, एंड हाउसेस ऑफ कॉमन पीपल. जब हम लोग ये सब चीज़ के बारे में पढ़ाई करते हैं, दिस इज ऑल रिलेटेड टू मटेरियल हिस्ट्री. ओके, वी कैन सी देम, टच देम, फील देम. ओके, so looking at them means looking or studying the history about forts, mansions, queen quarters, houses of the common people. We came to know, or we come to know about different knowledge about the architecture that was relevant during those period. कौन सा आर्किटेक्चर चलता था, क्या स्टाइल था उनका आर्किटेक्चर का, ठीक है ना. क्वालिटी ऑफ आर्ट, व्हाट वाज द डिजाइन दे वे यूजिंग व्हाइल डिजाइनिंग देयर हाउसेस, देयर इज अ मेंशन. ओके, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन उन लोग कैसे करते थे उस टाइम पे. पीपल लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे, मीन्स हाउ वे दे लिविंग ड्यूरिंग दोज टाइम, वो सब कंडीशन के बारे में हमें पता चलता था व्हेन वी यूज्ड टू स्टडी अबाउट द हाउसेस और फोर्ट्स. ओके, सो ये थे फोर्ट्स के बारे में. नाउ इफ वी स्टडी द कॉइन about the medieval period, during this period coin is also an example of material sources. Okay, and when we study about coin, okay, so coin भी different metals use करके बनाए जाते थे. for example gold coin होते थे, silver coin होते थे, copper coin होते थे. okay, और जब ये coin यूज़ किए जाते थे तो उनके ऊपर कुछ ना तो कुछ इंस्क्राइब किया जाता, मतलब कुछ ना तो कुछ लिखा जाता था. ओके, और जो भी वो लिखे जाते थे, बाय दैट वी यूज टू कम गेट द नॉलेज अबाउट हु वर द रूलर्स, कौन रूल कर रहा है. ओके, उनके नाम लिखे जाते थे. ऑफकोर्स देयर पीरियड्स लिखे जाते थे. पीरियड्स मतलब कितने टाइम के लिए उन्होंने रूल किया था. ओके, देयर रिलीजियस आइडियाज, मतलब कौन से रिलीजन में वो विश्वास रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑफकोर्स अगर हम लोग अकबर की बात करेंगे तो अकबर वॉज फॉलोइंग इस्लाम, तो इस्लाम फॉलो करते थे. तो ऑफकोर्स जो भी उनके कॉइन पे मिंट किया रहेगा वो उर्दू में मिंट किया रहेगा. इफ यू आर स्टडिंग अबाउट द शिवाजी महाराज, तो शिवाजी महाराज के टाइम पे जो भी कॉइन चलते थे उनके ऊपर देवनागरी में लिखा रहता था. ओके, सो हमें उनके रिलीजियस आइडियाज पता चलते थे, पर्सनल डिटेल्स कुछ पता चल जाते थे कि क्या क्या फॉलो कर रहे, क्या नहीं कर रहे, एक्सेट्रा. तो कॉइन ऑल्सो प्लेज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट रोल इन स्टडिंग द हिस्ट्री. ओके, सो उस वक्त पे इकोनॉमिक कंडीशन कौन सी प्रिवेल कर रही थी वो भी हमें पता चल जाता था. इकोनॉमिक कंडीशन क्या होता है, मतलब अगर हमें एक सिल्वर कॉइन दूँ तो मुझे कितना सामान रिटर्न में मिलेगा, कितना गेहूं, कितना चावल मिलेगा, ये सब कहते हैं इसको इकोनॉमिक कंडीशन. सो एट डिफरेंट रूलर्स के टाइम पे डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे रहती थी ये पता चल जाता था बाय डिफरेंट कॉइन्स. ओके, एंड वी ऑल्सो सी हाउ फार मेटलर्जी मतलब जो भी कॉइन्स यूज हुए हैं, कॉइन्स बनाने के लिए जो भी मेटल्स यूज हुए कॉइन बनाने के लिए वो कितने एडवांस्ड हुए. ओके, कि वो किस उसमें टेक्नोलॉजी कितने आगे बढ़ गई. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग पुराने ज़माने की बात करें, पुराने मतलब इफ़ वी टॉक अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ द मेडिवल पीरियड, तब भी जो कॉइन बनते थे वो एकदम परफेक्ट सर्कल में नहीं रहते थे. ओके, ऐसे ही मतलब गोल रहते थे पर पूरे सर्कल में नहीं रहते थे, वो धीरे धीरे डेवलप होते गए कॉइन्स. ओके, जो जो इंस्क्राइब किए रहते थे उनके ऊपर वो परफेक्टली इंस्क्राइब नहीं किए रहते थे. इट वाज नॉट परफेक्टली बिकॉज इट वाज हैंडमेड. ओके, धीरे धीरे मशीन्स की यूज़ करने जाने लगे तो मेटलर्जी मतलब कितने कॉइन्स एडवांस होने लगे ये हमें पता चलने लगा. सो ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्परर अकबर के टाइम पे जो कॉइन रहते थे उनके ऊपर राम सीता की फोटो रहता था. ओके, और या तो शिव पार्वती का फोटो रहते थे. और ड्यूरिंग द हैदर अली, व्हेन हैदर अली वाज रूल करते थे तो उनके ऊपर भी ऐसे ही राम सीता और शिव पार्वती के कॉइन के फोटोज रहते थे. ओके, सो हमें इससे ये पता चलता है कि कैसे
जो लोग इस्लाम को फॉलो करते थे वो भी रिलीजन कोऑर्डिनेशन में विश्वास करते थे। ओके, बीइंग अ मेंबर हु यूज टू फॉलो इस्लाम, वो हिंदुओं की फ़ोटो, हिंदू भगवान के फ़ोटो अपने कॉइन के ऊपर लगाते थे। ओके, तो पेशवास के टाइम पे, पेशवा वॉज अ ग्रेट रूलर इन महाराष्ट्र रीजन, ठीक है ना। पेशवा के टाइम पे उनके कॉइन के ऊपर अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज पे लिखा जाता था, ठीक है ना। सो इनके लैंग्वेज में लिखा जाते थे। ओके, ड्यूरिंग द रूल ऑफ पेशवास। ओके, देर इज ऑल्सो इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मतलब पत्थर, दीवार या स्टोन के ऊपर कुछ लिखा रहता है तो उसे हम लोग कहते हैं इंस्क्रिप्शन। ओके, सो ड्यूरिंग दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल सोर्स। तो देर आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंस्क्रिप्शन फाउंड इन बृहदीश्वरा टेम्पल इन तंजावुर। ओके, बृहदीश्वरा टेम्पल पे इंस्क्रिप्शन मिला है ड्यूरिंग द रिलेटेड टू मेडिवल पीरियड, एंड मैनी इंस्क्रिप्शन ऑफ द पीरियड ऑफ चालुक्य, राष्ट्रकूटा, चोला एंड यादव किंग्स आर फाउंड। तो हम लोग ये सब किंग्स के बारे में तो लास्ट ईयर तो पढ़ ही चुके। ओके, और इनके इंस्क्रिप्शन को कहते हैं, इन लोग हैं मटेरियल सोर्सेस। ओके, so this inscription is very important and reliable source in studying the history of the medieval period, because by using this inscription we get the knowledge about the language used in this inscription. Okay, the social life of a period, कैसे उन लोग रहते थे वो टाइम पे। ओके ना। सो कॉपर प्लेट्स को क्या होते हैं, कॉपर प्लेट्स के बारे में हमें कुछ बताया गया है। तो कॉपर शीट्स को यूज़ करके जब राजाओं लोग अपना आदेश देते थे फॉर द कॉमन पीपल, ठीक है ना, कॉपर शीट्स को यूज़ करके जब राजाओं लोग आदेश देते थे फॉर द कॉमन पीपल, वर्डिक्ट्स देते थे, उसको कहते हैं कॉपर प्लेट्स। ओके, so the next source of history is a written source. So during this period of medieval era we get a lot of knowledge about history from the written sources. मतलब जो कुछ बुक से मिलती थी हमें हिस्ट्री, जो चीज़ लिखी हुई है, मैन्युस्क्रिप्ट से मिलती थी, बुक से मिलती थी, पेपर से मिलती थी। ओके, तो जो चीज़ लिखी हुई है कि बहुत सारे हिस्टोरियंस ने उन्हें लिखी होगी, तो जो लिखी हुई चीज़ों से जब हमें हिस्ट्री मिलती है उसे कहते हैं हम लोग रिटन सोर्सेज। सो देयर वर मैनी डिफरेंट राइटिंग स्किल्स लाइक देवनागरी, अरेबिक, पर्शियन, मोदी एक्सेट्रा। तो दिस आर द डिफरेंट लैंग्वेजेस दैट वे यूज फॉर राइटिंग हिस्ट्री। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम राइटिंग हिस्ट्री देयर वर ऑल्सो डिफरेंट लैंग्वेजेस, भूर्जपत्रास, religious manuscripts. Manuscripts means handwritten documents को कहते हैं manuscripts, and handwritten document which says about or which describes about religion is called religious manuscript. Okay, treatises means long essays, ऐसा समझ सकते हैं। डिक्रीज मतलब जो रॉयली, जो राजाओं लोग आदेश देते हैं अपनी जनता को, प्रजा को, उसको कहते हैं डिक्रीज। ओके, बायोग्राफी, पेंटिंग्स एक्सेट्रा, दिस ऑल्सो आर इंक्लूडेड इन द रिटन सोर्सेस। अपार्ट फ्रॉम दिस handwritten documents of different languages, these biographies, paintings, treatises, manuscripts, this also are included in written sources. And from these written sources we get to know about the food items that were people used to eat during those time, ठीक है ना। अटायर, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे एक अपने लोगों के सामने वो पेश होते थे, वो उसके बारे में हमें पता चलता था। जो राजा रूल कर रहा है उसका कंडक्ट कैसा था, मतलब उसका बिहेवियर कैसा था टूवर्ड्स द पीपल ही यूज टू रूल, उसका रूल कैसे करता था वो पता चलते थे। फेस्टिवल विच पीपल यूज टू सेलिब्रेट वो टाइम पे, इनके बारे में हमें पता चलता था, ठीक है। सो सोर्सेज ऑफ दिस टाइप आर कॉल्ड रिटन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो ये सब चीज़ के बारे में हमें रिटन सोर्सेज से पता चलता था। ओके, so apart from this there were also travelers from different country which came to India during medieval period. दूसरे देश से इस देश में वो घूमने आए थे, बिजनेस करने आए थे, मर्चेंट थे उन लोग, but they came to India and they also written many travelogues, मतलब वो इंडिया में आके उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा था वो सब लिखे थे उन्होंने। ओके, सो ये भी रिटन सोर्सेस का ही एग्जाम्पल थे। ओके, some of that those travelers were अल बिरूनी, इब्न बतूता, निकोला मनुची, ठीक है ना। ये सब थे जिन्होंने इंडिया में आए थे फॉर डिफरेंट पर्पजेस और उन्होंने इंडिया के बारे में हिस्ट्री लिखे थे, अपने एक्सपीरियंसेस बताए थे। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस देयर वर आल्सो सम डिफरेंट सोर्सेस लाइक बाबर्स बायोग्राफी, या तो श्री शिव भारत। श्री शिव भारत इज द संस्कृत वर्जन ऑफ शिवाजी महाराजेस बायोग्राफी। ओके, which was composed by poet Parmananda, or many different biographies of different rulers which have ruled India or different parts of India, their policies, their way of ruling the people, ये सब के बारे में भी लिखा गया है। So this all plays a quite important role in the written sources of history. Okay, so apart from this there are some events like तवारीख और तारीख, ठीक है ना। ये एक चीज़ थी। तवारीख और तारीख का मीनिंग होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट। फॉर एग्जांपल हिंदी में तारीख का मीनिंग होता है डेट, तो कौन से इवेंट कौन से डेट को हुआ था उसको ही कहते हैं तवारीख और तारीख। ओके, सो दिस तवारीख वाज रिटन बाय अल बिरूनी, जियाउद्दीन बरानी,
मौलाना अहमद, याह बिन अहमद, मिर्ज़ा हैदर, भीमसेन सक्सेना एक्सेट्रा आर अवेलेबल। मतलब सभी लोगों ने अपना अपना वर्जन ऑफ तारीख या तवारीख लिखा थे, ठीक है ना, और ये सब अभी भी अवेलेबल है हमारे सामने। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द बखार। बखार क्या होता है? सो बखार इज अ टाइप ऑफ क्रॉनिकल दैट ओरिजिनेटेड इन महाराष्ट्र। व्हाट इज क्रॉनिकल? क्रॉनिकल मीन्स रिटन फैक्ट्स अबाउट द हिस्टोरिकल इवेंट दैट हैज टेकन प्लेस इन द टाइम ऑफ ऑर्डर, ठीक है ना। तो बखार मतलब महाराष्ट्र में डेवलप हुआ था, और कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट कब हुआ था इसको जब रिटन में लिखते हैं हिस्टोरियंस लोग, उसको कहते हैं बखार, ओके। और उसका मीनिंग था क्रॉनिकल का मीनिंग है, ओके। सो क्रॉनिकल्स जो कि महाराष्ट्र में ओरिजिनेट हुआ था, प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट पॉलिटिकल हैपनिंग्स दैट वेर गोइंग ऑन एट दैट प्लेस। मतलब कब कौन सा राजा रूल कर रहे थे, ओके। लिंग्विस्टिक ट्रांजेक्शन मतलब लैंग्वेजेस कैसे चेंज धीरे धीरे होने लगी, कल्चरल लाइफ लोगों के कल्चर्स कैसे चेंज होने लगे, ओके। सोशल कंडीशंस दैट वे प्रिवेलिंग ड्यूरिंग दैट टाइम, ये सब हमें क्रॉनिकल से, ये बखार से पता चलता है, ठीक है ना। सो देयर वर ऑल्सो सिचुएशन, मतलब ऐसे भी सिचुएशन आए थे जब बखार मतलब हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में लिखना होता है, ओके। सो ऐसे भी सिचुएशन थे जब इवेंट होके बहुत साल हो चुके हैं और उसके बाद वो बखार उसके बारे में लिखा गया है। तो इसका मतलब एक ऑथेंटिक या रिलायबल सोर्सेस नहीं है हमें उसके बारे में लिखने के लिए, बट देन ऑल्सो पीपल यूज टू राइट बखार अबाउट दोज इवेंट। तो वो ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, ठीक है ना, वो बखार। सो पीपल यूज टू रिलाई ऑन हियर से, मतलब एक दूसरे से सुनी हुई कहानी के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे वो बखार लिखने के लिए। एंड सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ बखार आर महिकवातीची बखार, सभासद बखार, चितनी शाची बखार, बाहूसाहेबाची बखार, etc. So these were the some examples of Bakhar. So apart from this Bakhar, there were also Western historians, मतलब from the Western countries, जिन्होंने लिखा है written sources में, like Robert Arm, MC Sprengel and Grant Duff are also important in writing the written sources of history. So the next source is oral sources. So when a story about one society or one culture is passed on from generation to generation and so on orally, मतलब हमारे पास कुछ रिटन एविडेंस नहीं है, कुछ मटेरियल सोर्सेस नहीं है, बट द स्टोरी इज गोइंग ऑन पासिंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, उसको हम लोग कहते हैं ओरल सोर्सेस. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरल सोर्सेस. दिस आर द टाइप्स ऑफ द ओरल सोर्सेस. ओके, सम एग्जांपल्स आर ओविस. ओविस का मीनिंग ही होता है ओरल हिस्ट्री, ठीक है ना. फोक सॉन्ग. फोक सॉन्ग मीन्स सॉन्ग विच रिलेटेड टू द नेटिव पीपल. फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं उनका जो फोक सॉन्ग है मराठी में, उन्हें हम कहते हैं फोक सॉन्ग. पोवाडास. पोवाडास मीन्स शॉर्ट स्टोरी एक्सप्लेन इन अ फॉर्म ऑफ अ सॉन्ग, उसको हम लोग कहते हैं पोवाडास. फोक टेल्स, लोक कथाएं जो स्टोरी है उन्हें हम लोग कहते हैं स्टोरी. फोक टेल्स मीन्स ऐसी स्टोरी जो हमने सुनी है, अभी ये फैक्ट पता नहीं है कि वो सच स्टोरी है कि झूठ, बट हम लोग दादाजी नाना जी से जो भी स्टोरी सुनते रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं फोक टेल्स. ओके, लेजेंड्स, द स्टोरी विच वी लर्न अबाउट द ग्रेट बैटल्स, ठीक है ना, ग्रेट वॉरियर्स जो भी वॉर्स में गए हैं, ग्रेट बैटल्स हुए हैं, उनके बारे में जब हम लोग स्टोरी सुनते हैं उन्हें कहते हैं लेजेंड्स. एंड मिथ्स. मिथ्स मतलब अभी वो सच है कि झूठ ये किसी को पता नहीं, फैक्ट उनके बारे में नहीं में. सो दिस आर द टाइप्स और दिस आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. ओके, सो अभी तक हम लोग ने 3 सोर्सेज के बारे में पढ़ा: रिटन सोर्सेज, मटेरियल सोर्सेज एंड ओरल सोर्सेज. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरल सोर्सेज और रिसर्च अभी भी चालू है. फाइंडिंग मोर नॉलेज, फाइंडिंग मोर एविडेंस, फाइंडिंग मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस डिफरेंट सोर्सेज. और रोज ही नए नए इन्फॉर्मेशन आते जा रहे हैं सामने. एंड व्हेन दिस न्यू इन्फॉर्मेशन कम इनटू द लाइट, हमें इनके अकॉर्डिंगली हिस्ट्री लिखनी पड़ती है. ओके, सो इफ़ यू कंपेयर द हिस्ट्री बुक of yours to the history book of your parents or your grandparents, you will see that there is a lot of changes that has taken place since that time to now. ठीक है ना, तो हिस्ट्री लगातार चेंज होती ही रह रही है. So now the next topic is about the evaluating the sources of history. So whenever we are studying the history or whenever we are using different sources, these different sources of material, written or oral sources of history, we have to check the authenticity. We have to examine them. We have to critically examine them. मतलब हमें देखना रहता है कि हम लोग सच में सच हिस्ट्री पढ़ रहे, सच हमारे पास ट्रू इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग गैदर कर रहे हैं फ्रॉम दैट बुक और फ्रॉम दैट डिफरेंट मटेरियल सोर्सेज, वो सच है कि फेक है. ओके, सो हमें ये कैसे पता चल सकता है? ओनली बाय वेरीफाइंग वेदर दे आर रिलायबल सोर्स या नहीं है. ओके,
So apart from the sources, we have also to study the integrity of the writer. जिन भी राइटर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उनके पर्सनल डिटेल्स हमें पता होने चाहिए, पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, ओके कौन से पीरियड में वो रहते थे. फॉर एग्जांपल इफ़ अ राइटर यूज टू लिव ड्यूरिंग 1100 to 1200 के बीच में, तो जब वो हिस्ट्री लिख रहा है 1500 के बारे में, सो मतलब वो फेक हिस्ट्री है, ठीक है ना, वो सच नहीं हो सकता है. ओके तो ये भी हमें पता चलना चाहिए. ओके अपार्ट फ्रॉम दिस, वेन एवर वी आर डिपेंडिंग अपॉन द हियर से मतलब जब हम लोग किसी के ओरल हिस्ट्री के बारे में सुन रहे हैं, सो वी ऑल्सो हैव टू एग्जामिन द आई विटनेस कि क्या ये सही में था, कि ऐसा सही में हुआ था. मतलब हमें और डिफरेंट सोर्सेज से पता करना चाहिए कि सच हिस्ट्री है कि फेक हिस्ट्री. ओके वी हैव टू ऑल्सो सी द एग्जैजरेशन का मीनिंग होता है और बड़ा चढ़ा के तो नहीं बोल रहा है ये हिस्ट्री में सिर्फ 2 जन की लड़ाई हुई थी और ये बोला था वर्ल्ड वॉर हो गया. तो हमें चेक करना रहता है कि एग्जैजरेट कर रहा है, मेटाफोर मतलब एग्जाम्पल दे के तो नहीं बात कर रहा है कि अरे एग्जाम्पल में मैं तो मसाला डाला था थोड़ा सा ऐसा. तो हमें वी हैव टू वेरीफाई डिफरेंट रिलायबल डेटा कि हम लोग कौन से सोर्स के लिए कौन सा डेटा यूज़ कर रहे हैं, और जो भी डेटा हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्या वो सही है कि झूठ है. ओके और भी देखना रहता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन राइटर ने हमको दी है क्या वो वन साइडेड इन्फॉर्मेशन दी है कि वो दोनों तरफ से बात कर रहे हैं. ओके कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं है, मतलब वो अपनी बात को झूठ तो नहीं बोल रहा है बाद में आगे जाके. ओके सो देयर आर डिफरेंट सोर्सेज एंड while studying history from these different sources, we have to be critically analyzing the different sources to get the true and fair view of the history. Okay तो ये था चैप्टर नंबर 1 ऑफ स्टैंडर्ड 7 सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. ओके थैंक यू वेरी मच.